ಈ ಬಜೆಟ್ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೂ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ, ಒಂದೂ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೆಲವನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. 1 ರ್ಯಾಂಕ್ 1 ಪೆನ್ಷನ್ ಈ ದೇಶದ ಯೋಧರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2014-15 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ನಂತರ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ 35,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್? ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, OROP ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ 2013 ಇವ್ರು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾಟ್ 3%, 3% ಅಲ್ಲ, 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ರ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮೆಷಿನರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗಾಗಿ 3 ಪಟ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 1,53,00,000 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ 36,50,000 ಮನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದು. ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು 1,53,00,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ತಪ್ಪಿದೆ. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯು. ಸದನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗೋಲ್ಡನ್. ಸರ್, ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ವೈ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಸ್ ಇಟ್? ಸದನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು? We will not meet, we will expose them. We will expose them. 143 ಕೋಟಿ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂಚಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ 23 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿ ನೀವೇ ಎಡವಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? 143 ಕೋಟಿ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಂಚಿರೋದು 23 ಕೋಟಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದೆಮ್. ಈಗ ತಾನೇ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಅವರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಬಯಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಜನಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 5 ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದವರು, ಅದು 6ನೇ ಬಜೆಟ್, ಮಧ್ಯಂತರ ಬಜೆಟ್. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದವರು, ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಏನೂ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದವರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. योजना के तहत 6,000 रुपया सालाना दिया जाएगा. 2,000 की 3 किस्तों में ये 6,000 रुपया हर किसान के पास पहुंचेगा और इसके कारण सरकार करीब 75,000 करोड़ रुपए का बोझ सहन कर किसान भाइयों के मदद के लिए खड़ी रहेगी. मैं मानता हूं कि ये कदम किसान की आय 2 गुना करने में बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि जो किसान बैंक से ऋण नहीं लेते हैं उनको भी ये फायदा होने वाला है. बैंक के कर्ज की माफी सिर्फ एक बार होती है. बैंक के कर्ज माफ करने से उन्हीं किसानों को फायदा होता है जो ऋण लेते हैं. देश के करोड़ों किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं. करीब 50% किसान ऐसे हैं जो ऋण नहीं लेते हैं. उनको तक भी ये फायदा पहुंचेगा और ये फायदा हर साल पहुंचेगा. ये योजना है, जैसे मनरेगा हर साल होती है, इसी तरह से ये योजना हर साल रहेगी. तो मैं मानता हूं एक लंबे समय के लिए किसानों को सहायता देने की ये योजना देश के हर गरीब किसान के लिए, छोटे किसान के लिए बहुत, उनको इनपुट्स के लिए, किसान को खेती की शुरुआत करने के लिए बहुत मददरूप होगी. इसके साथ कामधेनु संवर्धन आयोग बनाकर प्रधानमंत्री जी ने गौ संवर्धन के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है. हमारे संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण दोनों प्रमुख रूप से उल्लेखित किए गए हैं. गायों की नस्ल को सुरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, गौशालाओं का निर्माण करना, अनेक विध गौ संवर्धन के उद्देश्यों को एक कामधेनु संवर्धन आयोग
पूर्ण करने में सहायता करेगा। और हमारी सनातन संस्कृति में पूज्य बापू हो या विनोबा भावे, सबने गाय के महत्व को हमारे समाज जीवन में, हमारे अर्थ जीवन में स्वीकारा है और प्रधानमंत्री जी ने कामधेनु संवर्धन आयोग से इसको बल देने का काम किया है। किसान क्रेडिट कार्ड में समय पर भुगतान करने पर कुल 2 और 3 ऐसे 5% की रियायत देकर एक बहुत बड़ी और राहत समय पर भुगतान करने वाले किसानों को दी है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी बात है। देश के मछुआरा समुदाय के लिए भी मत्स्य पालन विभाग को अलग से बनाकर एक नई शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है और देश के करोड़ों मछुआराओं के कल्याण के लिए ये मत्स्य पालन विभाग अब सीधी कामगिरी करेगा। इससे मछुआरों का कल्याण करने में सहायता होगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना देश के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा गरीब श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये का पेंशन, जिसमें उनके जितना ही कंट्रीब्यूशन भारत सरकार करेगी, ये बहुत बड़ी रियायत देने वाला है। छोटा सा ठेला चलाने वाला, पग रिक्शा चलाने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले, खुदरा मजदूरी करने वाले सभी श्रमिकों की गैस का चूल्हा पहुंचाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी सरकार ने रखा है। मैं मानता हूं देश की गरीब महिलाओं के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। देश के मध्यम वर्ग के लिए ढेर सारी रियायत इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री जी लेकर आए। सबसे पहले 2.5 लाख तक की आयकर की सीमा को सीधा डबल कर 5 लाख तक की सभी आय को आयकर से मुक्त करने का काम कर देश के मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। और मैं मानता हूं मध्यम वर्ग जो प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करता था उससे कुछ ज्यादा ही प्रधानमंत्री जी ने मध्यम वर्ग का समर्थन करने का काम किया है। और जो निवेश कर पाएंगे, निवेश करना चाहते हैं, ऐसे सभी करदाताओं को अब 6.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो एक प्रकार से निवेश जो कर पाएंगे उनके लिए आयकर की मर्यादा 6.5 लाख तक की हुई है और जो निवेश नहीं कर पाएंगे उनके लिए 5 लाख तक की कर दी गई है। और कई सारी रियायतें इसके अंदर दी है। आयकर की मर्यादा के अंदर पहले एक घर का रेंट उनको बेनिफिट कराता था, अब 2 घरों को कर मध्यम वर्ग के कई लोग जो अलग अलग जगह पे नौकरी करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी राहत का काम किया है। सीमा को भी 40,000 बढ़ाकर 50,000 तक ले जाने का काम किया है। ढेर सारी रियायतें मध्यम वर्ग को लिए भी ये सरकार लेकर आई है। और मुझे आनंद है इतना सारा करने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित करने में सरकार सफल हुई है। सिर्फ 3.4% का बजट घाटे का लक्ष्य रखकर इस सरकार ने ये सारी रियायतें दी है। इसका मतलब राज्य की, देश की इनकम बढ़ाने में, आवक को बढ़ाने में सरकार को सफलता मिली है। डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के सभी 4 कॉर्नर्स को मेंटेन किया गया है और मैं मानता हूं इसके कारण महंगाई की दर जो अब तक 5 साल में कंट्रोल रखने में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है, अगले साल भी महंगाई की दर नियंत्रित होगी। मित्रों, ये बजट एक सर्वांगीण बजट है। ये बजट विकास को गति देने वाला बजट है। ये बजट रोजगारी का सृजन करने वाला बजट है। ये बजट लघु उद्योग को उत्तेजन देने वाला बजट है, क्योंकि उनकी बैंक के लोन में भी 2% ब्याज की छूट कर दी, रियायत दी गई है। पहले 40 लाख तक की रजिस्ट्रेशन जीएसटी को 40 लाख के कारोबार तक फ्री कर दिया गया और अब उनकी लोन में
2% की रियायत देकर लघु उद्योगों को भी बहुत फायदा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है, जो देश में रोजगारी का सृजन करेगा, देश के किसान को इनपुट्स के समय जब उसको चाहिए तब मदद देकर इसके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा, देश की गौ माता को संवर्धित और संरक्षित करने के लिए कामधेनु आयोग अपनी तरह से काम करेगा। घुमंती जातियों के लिए भी एक अलग आयोग बनाया गया है, मछुआरों के लिए भी एक प्रकार से उनकी विकास को सरकार ने प्रायोरिटी देने का काम किया है। समाज के हर वर्ग को बजट के अंदर समाहित कर फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी मेंटेन रखने का काम सरकार ने किया है। इस बजट का मैं पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और इस बजट के आधार पर देश के विकास को जो प्रधानमंत्री जी ने गति दी है, दुनिया में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बने हैं, दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ता अर्थतंत्र बने हैं, उसी रफ्तार को अगले वित्तीय साल में भी हम चालू रख पाएंगे। इस भरोसे के साथ फिर से देश के वित्त मंत्री पीयूष गोयल जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।